Welcome, my dear students. In this session, we'll be doing questions related to infinite surds. Basically, infinite surds are those surds where we have radicals within radicals within radicals और उस पर based हमारी calculations होंगी. For example, it could be a question like square root of 2 plus square root of 2 plus square root of 2 plus and so on infinitely. So this is a recurring pattern. This could also be like square root of 5 plus या 15 plus 2 root square root of 15 minus 2 root square root of 15 plus 2 root and so on till infinity. So we'll be doing such questions and by the end of the session you will be very comfortable. You will find these questions very easy. Start करते हैं session को. And if you have not already subscribed to the channel, you can subscribe to it as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological, and I will also give the link of the WhatsApp channel in the description. Okay, so सबसे पहले एक basic fundamental समझ लेते हैं. Let us say the pattern of the series of the infinite surd is square root of a plus square root of a plus square root of a and so on till infinity. This is our infinite series. Let us assume this is equal to x. ये वैल्यू हमारा equal to x है. Okay, and if this expression is equal to x, then can we say since this is an infinite series type of thing, so अगर हम एक infinite series में से एक टर्म को एक पार्ट को रिमूव कर दें तो बचा हुआ टर्म में भी तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे. सो इफ यू फोकस ऑन ओनली दिस पार्ट, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए के प्लस यही पार्ट तो बार बार रिपीट हो रहा है. सो दिस रिमेनिंग पार्ट दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू एक्स, बिकॉज इसमें भी तो इनफाइनाइट टर्म्स है. सो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू एक्स. इजंट इट सो? And if this is equal to x, we can write this as square root of a plus x is equal to x. Isn't it so? Now if we square on both sides, squaring both sides, this becomes a plus x. This is equal to x square. And hence this becomes x square minus x minus a, that is equal to 0. This is equal to 0. And if this is equal to 0 तो हमारे रूट क्या आ जाएंगे? x will be equal to minus b which is minus 1. So 1 plus minus root of b square which is 1 in this case. ठीक है? So 1 minus minus 4a divided by 2. So this is 1 plus minus root of 1 plus 4a or 4a plus 1 divided by 2. And since this is a square root value, so x will definitely be greater than 0. पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा इसलिए माइनस साइन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज माइनस साइन से जो वैल्यू आएगा वो हमें नेगेटिव मिलेगा. सो x इन दिस केस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. क्या लॉजिक क्लियर है? ओके, x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, ठीक है. सिमिलरली अगर प्लस साइन की बजाय हमारा माइनस साइन रहेगा, भाई जरूरी थोड़ी क्वेश्चन में प्लस साइन ही हो, सारे के सारे प्लस हो, ये भी पॉसिबल है सारे माइनस हो. सो इफ द सीरीज इज a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू y, लेट अस से, तो y का वैल्यू हो जाएगा बाय द सेम लॉजिक एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे. और सो y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है? यहां पे प्लस 1 है और अगर माइनस साइन होगा तो इन दिस प्लेस दिस विल बी माइनस 1. सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया. बट इन मेनी केसेस ऐसा होगा कि एक ही जगह पे वी विल हैव अ नंबर, वी विल हैव प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल इट कुड बी इक्वल टू 12 एंड दैट 12 कैन बी रिटन एज 3 into 4. Or in general, that number can be written as n into n plus 1. That number can be written as n into n plus 1. ठीक है? So if that number can be written as n into n plus 1, so in that case यहाँ पे अगर हम लिखें x a plus x is equal to x square. ठीक है? So if a is equal to n into n plus 1, so we can write that n into n plus 1 will be equal to x square minus x. Isn't it so? Which is x into x minus 1. So n into n plus 1 क्या है? These are two consecutive terms और x minus 1 into x that is also two consecutive terms.
ठीक है, ध्यान ये देना है स्मॉलर टर्म कौन सा है, n है, स्मॉलर टर्म हमारा राइट हैंड साइड में कौन सा है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन इज इक्वल टू n, यानी कि इन दिस केस x विल बी इक्वल टू n प्लस वन। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, if our a is equal to n into n plus 1, in that case result will be n plus 1 if सारे के सारे साइंस हमारे प्लस हैं। और अगर हम सेकंड वाले केस में चेक करें, सेकंड वाले केस में चेकआउट करें, तो हमारा इक्वेशन एक्चुअल में जो बनेगा वहां से रिजल्ट हमें मिलेगा दैट y विल बी इक्वल टू n। तो दो रिजल्ट हमें मिले, इफ इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव n into n plus 1 प्लस n into n plus 1 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, इन दैट केस जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू n प्लस वन, द लार्जर वैल्यू बिटवीन द प्रोडक्ट। ठीक है, n और n प्लस वन में लार्जर वैल्यू होगा। और अगर हमारा सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो n इंटू एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, देन रिजल्ट विल बी इक्वल टू n। तो ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो पहला वाला हमने रिजल्ट निकाला था कि n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू a, तो फर्स्ट केस में रिजल्ट आएगा रूट ऑफ 4a प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सेकंड केस में रिजल्ट आएगा रूट ऑफ 4a प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई 2। रिजल्ट्स को याद नहीं करना है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो वैसे ये चीजें तुम्हें रिकॉल करना आसान हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड फटाफट से एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सबसे पहले कन्वेंशन फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो कन्वेंशन फॉर्मूले से रिजल्ट क्या आएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस वन, और क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस वन एंड दिस डिवाइडेड बाई 2 एंड a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 20, दिस इज a की जगह 20 पुट कर दोगे, सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस वन डिवाइड बाई 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, तो 9 प्लस वन बाई 2 विल बी इक्वल टू 5, दिस विल बी इक्वल टू 5। और स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमें दिख रहा है 20 क्या है, 20 इज 5 इंटू 4, 20 क्या आ रहा है 5 इंटू 4, 4 इंटू 5 n इंटू एन प्लस वन, 4 इज n, 5 इज n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, 4 इंटू 5, तो क्लियर रिजल्ट हमारा क्या आएगा, n प्लस वन आएगा विच इज इक्वल टू 5। इज दैट इट? सो सिमिलरली इन द सेकंड केस यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है और 6 कैन बी रिटन एज n इंटू एन प्लस वन, 2 इंटू 3 के रूप में लिखा जा सकता है इसको। इज दैट इट? एंड सिंस 2 इज द स्मॉलर नंबर तो दिस विल बी इक्वल टू 2, और अगर फॉर्मूले से जाएंगे सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4a प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 एंड a इज इक्वल टू 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 4 प्लस वन यानी 25 माइनस वन बाई 2, सो 5 माइनस वन बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 ओनली, दैट इज इक्वल टू 2 ओनली। क्लियर? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। 72 इज 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 एंड सिंस वी हैव ऑल द इनफाइनाइट प्लसेस, एडिशन है तो डेफिनेटली लार्जर वैल्यू रिजल्ट होगा, 9 रिजल्ट होगा। 90 इज 9 इंटू 10, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो रिजल्ट हमारा 10 नहीं होगा, यहाँ भी रिजल्ट 9 ही होगा, यानी कि बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल। ओके, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास 5 का प्रोडक्ट करोगे तो 5 तो हमारा 1 इंटू 5 आएगा, और तो कोई वैल्यू 1 इंटू 5 में क्लियरली दिस इज नॉट n इंटू एन प्लस वन, तो डेफिनेटली इसको हम दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं जो कि इंटीजर है और n इंटू एन प्लस वन के फॉर्मेट में है। इज दैट सो? सो दैट इज वाई यहाँ पे हमें अपना कन्वेंशनल फॉर्मुला ही अप्लाई करना पड़ेगा और उससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो द फॉर्मुला इज a हमारा आ रहा है इक्वल टू 5, सो इसको फॉर्मुला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस वन यानी 4 इंटू 5 प्लस वन एंड सिंस देयर इज अ प्लस सो प्लस वन डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 1 प्लस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। ऑल्सो इन दीज केसेस यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली हमारा अप्रोक्सीमेशन करके वैल्यू आसपास किसके आ रही है, बिकॉज जरूरी नहीं क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू पूछे, वो रेंज भी पूछ सकता है कि किस रेंज में आंसर होगा। तो 1 प्लस रूट 21 बाई 2, रूट 21 कितना है, दिस इज ऑलमोस्ट 4.5 का स्क्वायर इज 20.25, तो दिस इज ऑलमोस्ट 4.5। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारा आ रहा है 4.5 या 4.6 के आसपास मान लो, तो 1 प्लस 4.6 बाई 2 विच इज 5.6 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 2.8 approximately. So between 2 and 3 the answer is, our answer is between 2.5 and 3 to be precise. Okay, अब यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ तुम्हें और समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करना है हमको, बट स्टिल ये है कि हमें चीजें बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए क्या यहाँ पे हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं 5 को। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है, टू बी प्रिसाइज दैट इज 2.236। ओके, तो 2.236 माइनस हाफ प्लस हाफ कर देंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा 1.7
और एक वैल्यू मिलेगा 2.7। ठीक है, एक वैल्यू मिलेगा 1.7 और एक वैल्यू मिलेगा 2.7, और रफली हमारा जो आंसर होगा या फिर 1.8 और 2.8। ठीक है, तो अगर हम 1.8 और 2.8 अपनी दो वैल्यूज लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट ऑलमोस्ट द रिजल्ट इक्वल टू 5। और क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेक्यूटिव प्लस हैं, तो अवर आंसर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2.8। क्या ये बात अप्रिशिएट कर रहे हो? हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, बट क्या ये अप्रोच समझ पा रहे हो? क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं तुम्हें? ठीक है, कि हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2.8 के आसपास आएगा, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट वी आर गेटिंग एज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में क्या है, माइनस साइन है, तो रूट ऑफ 4a प्लस 1 माइनस 1 होगा, और a इज इक्वल टू 1 ओनली, a इज इक्वल टू 1 ओनली। तो 4a यानी 4 इंटू 1, 4 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी रूट 5 माइनस 1 बाई 2, and root 5 is equal to 2.236, so this will be 1.136 by 2, so approximately 0.57 के आसपास का वैल्यू आ रहा है, 0.57 के आसपास का वैल्यू आ रहा है, isn't it so? है कि नहीं? ठीक है, लमसम वैसा वैल्यू आ रहा है, क्लियर है? ओके, एक सेकेंड 1.236 आएगा, सो दिस विल बी 0.62 के आसपास का वैल्यू आएगा, 0.618 और 0.62 के आसपास का वैल्यू आएगा। अगर हम 1 के केस में भी यही करें, तो 1 इंटू 1 तो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, एक वैल्यू को 0.5 इंटू 1.5 विल बी 0.75, तो 0.6 इंटू 1.6 के आसपास वैल्यू आएगा हमारा, isn't it so? और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो आंसर शुड बी अराउंड 0.6, which is 0.618 is more precise answer। बट क्या ये अप्रोच क्लियर हो रहा है तुम्हें, कि यहाँ से भी हम अपना एस्टिमेशन आंसर का पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो अगर मैं एस्टिमेशन करना है तो इस तरह से भी सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 यानी 4 इंटू 11 प्लस 1 45 प्लस 1 बाई 2, and similar in the second case this will be square root of 7 into 4 28 plus 1 29 minus 1 by 2, so these will be the answer values। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये जनरल आंसर्स हमने पता लगा लिया, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। अब इसके बाद में एक दो चीजें देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 एंड सो ऑन। सो a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, a विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 यानी कि 44 प्लस 1 45 प्लस 1 बाई 2, एंड b विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 1 बाई 2। दिस इज a, दिस इज b। सो a प्लस b क्या हो जाएगा, इफ यू आर एडिंग a एंड b बोथ, तो a प्लस b विल बी हमारा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 रूट 45 बाई 2 यानी कि रूट 45 आ जाएगा, एंड a माइनस b के केस में रूट 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आंसर विल बी 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1, सो a माइनस b विल बी इक्वल टू 1। ओके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि a माइनस बी हमारा 1 आएगा, जो कि एक्चुअल में हर एक केस में ही 1 आएगा, बिकॉज हर एक केस में हमें प्लस 1 बाई 2 मिल रहा है। ठीक है, इन जनरल जो हमारे केसेस हमने डिस्कस किए अब तक, तो वहां पे a माइनस बी वाला केस होगा, यानी कि एक केस में प्लस वाले साइंस होंगे और एक केस में माइनस वाले साइंस होंगे, डेफिनेटली हमारा दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, और इसके बाद में a इंटू बी का वैल्यू क्या आएगा, a इंटू बी, बिकॉज ये वैल्यूज हमारी कॉन्जुगेट है, सो a इंटू बी हो जाएगा स्क्वायर टू 45 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो 44 बाई 4, रिजल्ट विल बी इक्वल टू 11। a इंटू बी will come out to be equal to 11। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये प्रॉपर्टीज भी समझ में आना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा चीजों को और जनरलाइज करते हैं। नोटिस से अवर इनफाइनाइट सर्ड इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ a plus b and so on till infinity। let us say this is equal to x। ठीक है, so if this is x, तो एक सर्ड को रिमूव करने के बाद ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये भी तो इक्वल टू x ही होगा, this will also be equal to x। so we can write this as square root of a plus bx is equal to x। squaring on both sides, this will be equal to a plus bx is equal to x square। so result आ जाएगा x square minus bx minus a is equal to 0, और यहाँ से x will be equal to, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू कोई पॉइंट नहीं है, सेम एज प्रीवियसली कि नेगेटिव वैल्यू हमारा आंसर नहीं आएगा, बिकॉज x विल बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू
माइनस बी यानी कि बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a यानी कि 4a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इस केस और प्रीवियस जो केस हमने अब तक डिस्कस किया उनमें फर्क क्या है कि इन दोज केसेस b वाज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड सिंस इन दोज केसेस b वाज इक्वल टू 1 बस b की जगह 1 पुट कर दोगे 1 प्लस रूट ऑफ 4a प्लस 1 बाई 2 हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो कि अब तक हमने किया। ठीक है, सो दिस इज मोर जनरल सॉल्यूशन टू दिस केस कि x इज इक्वल टू b प्लस रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अगर माइनस साइन होगा, अगर नेगेटिव माइनस साइन होगा हमारा यानी कि a माइनस बी रूट ऑफ a माइनस बी एंड सो ऑन होगा, सो इन दैट केस हमारा आंसर आएगा x विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ओके, अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं ऐसे भी दो चार एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट ऑफ 6 माइनस 2 टिल इन्फिनिटी। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा? दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 2। a 6 है और b हमारा 2 के इक्वल है, 2 के इक्वलेंट है। सो रूट ऑफ 24 4 इंटू 6 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 4 28, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 माइनस 2 बाई 2 और स्क्वायर रूट 28 में से रूट 7 बच जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स रूट 7 माइनस 1। रिजल्ट हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर? रूट 7 माइनस 1 विल बी आवर आंसर। सेकेंड केस में आ जाएगा रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई 2 एंड a इज इक्वल टू 9 b इज इक्वल टू 4। तो रूट ऑफ 4 इंटू 9 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। So this becomes 36 plus 16 root of 52 plus 4 by 2. So this becomes square root of 13 plus 2. The answer will be square root of 13 plus 2. Clear है? This will be approximately 3.6 plus 2 यानी कि roughly 5.6 आ जाएगा आंसर हमारा। Okay. Next question. If a is equal to square root of a plus 2 square root of a plus 2 square root of a plus 2 and so on, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ सकती है? तो या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्ट्रेट अवे ये तो दिख रहा है कि a plus 2, so this will also be equal to a. So a is equal to square root of a plus 2a and hence a is equal to square root of 3a. स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a, a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 0। सो a कॉमन आ गया और a इंटू a माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली a 0 तो नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू होगा, a 0 तो नहीं होगा। ठीक है, 0 होने का कोई सेंस नहीं बना, अदरवाइज 0 हो सकता है बट क्वेश्चन में मेंशन होगा कि a इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सो a 0 नहीं होगा बिकॉज a इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकेंड सॉल्यूशन और द रेलेवेंट सॉल्यूशन विल बी a इज इक्वल टू 3। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में तो यस a इज इक्वल टू 0 विल ऑल्सो बी अ सॉल्यूशन। ठीक है, विल ऑल्सो बी अ सॉल्यूशन बिकॉज वो एक सॉल्यूशन हमारा आ रहा है। ठीक है, अगर गिवन होगा कि a इज अ पॉजिटिव नंबर इन दैट केस a डेफिनेटली विल बी इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3 ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, बट अदरवाइज a इज इक्वल टू 0 भी हमारा सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन की कंडीशन को। क्लियर है? ओके, ठीक, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस है इस बार। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से दिस इज इक्वल टू x, कि दिस इज इक्वल टू x एंड इफ दिस इज इक्वल टू x, सो वी कैन से यहां पे हमारा रिपीटिशन कहां पे स्टार्ट हो रहा है? ध्यान देना है कि पहले ब्रैकेट के बाद में, पहले रूट के बाद में स्टार्ट नहीं हो रहा है बिकॉज उसके बाद में माइनस भी है, प्लस है, माइनस है, तो हमारा जो रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है वो दो रूट्स के बाद में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x एंड दैट इज इक्वल टू x। अब स्क्वायर करोगे सो दिस विल बिकम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस x। ओके, सो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x। अगेन स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 माइनस x। सो x टू द पावर 4
प्लस 16 माइनस 8x² इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 16 प्लस x² माइनस 8x। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को तुम एक साइड में भी लेके आओगे तो भी तुम्हारा एक इक्वेशन बनेगा जिसका डिग्री 4 है, तो उसको सॉल्व करने में तो प्रॉब्लम आएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे रिजल्ट समझ लेते हैं कि रिजल्ट हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यही क्वेश्चन इनफैक्ट है हमारा पहला क्वेश्चन, इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रूट ऑफ 4a माइनस 1 प्लस 3 बाई 2, और a क्या है, a इज इक्वल टू 4। सो दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4, 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो रूट 13 प्लस 1 बाई 2। प्रीवियस केस में अगर सारे के सारे प्लस होते सारे साइंस प्लस होते तो हमारा रिजल्ट होता रूट ऑफ 4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, बट यहां पे क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस है तो रिजल्ट है हमारा रूट ऑफ 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगेन इस केस को भी जनरलाइज करते हैं जैसे कि प्रीवियस वाले केस को हमने किया था कि अगर यहां भी हमारे पास रूट ऑफ a प्लस b, रूट ऑफ a माइनस b, रूट ऑफ a प्लस b, रूट ऑफ a माइनस b एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी होगा, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई 2। और ये तब है जबकि फर्स्ट साइन इज प्लस, सेकेंड इज माइनस, देन प्लस, देन माइनस, यानी कि फर्स्ट साइन इज प्लस साइन, एडिशन का साइन इज द फर्स्ट साइन। ठीक है, इन दैट केस अल्टरनेट प्लस माइनस है तब फिर ये रिजल्ट होगा। बट इफ फर्स्ट साइन इज द नेगेटिव साइन, कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद a प्लस b दिस स्टार्ट्स विद a माइनस b एंड देन नेक्स्ट साइन इज प्लस साइन, सो a माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इन दैट केस हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी लेसर वैल्यू, वो छोटा वैल्यू आएगा, पहले जब प्लस आएगा तो वैल्यू लार्जर आएगा, अब सेकंड वाले केस में छोटा वैल्यू होगा, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी आवर रिजल्ट। ओके, अगेन इस पर बेस भी एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, तो क्या रिजल्ट आएगा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b, बिकॉज पहले प्लस आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 एंड a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 3, so this will be equal to square root of 4 into 8 minus 3 into 3 square plus 3 divided by 2. 4 into 8 is 32, 32 minus 27, root 5 plus 3 by 2. Square root of 5 plus 3, this divided by 2, this will be our result. Okay, clear? ठीक है, next case, square root of 16 minus 4, square root of 16 plus 4, square root of 16 minus 4 and so on till infinity. A is equal to 16, b is equal to 4. So result will be square root of 4a minus 3b square minus b divided by 2. So 4 into 16 minus 3 into 4 square minus 4 by 2. So 4 into 16 is 64, 64 minus 48 is root 16, root 16 minus 4 by 2, and this will be equal to 0 because root 16 is also 4. So result आ जाएगा हमारा 0, this value whole value is equal to 0. Clear? Very interesting result कि पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। Isn't it so? Clear है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पे तो स्क्वायर रूट था, बट जरूरी थोड़ी है कि स्क्वायर रूट ही हो, कोई और वैल्यू भी हो सकता है। लेट अस से गिवन हो x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 252 प्लस
फोर्थ रूट ऑफ 252 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 252 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ओके, लॉजिक तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन बदल गया है तो लॉजिक, बट यहाँ पे फॉर्मूला तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बट लॉजिक तो सेम ही रहने वाला है। सो दिस एक्सप्रेशन, जब हमने फर्स्ट रेडिकल को रिमूव कर दिया उसके बाद का एक्सप्रेशन ये भी तो इक्वल टू एक्स ही होगा। सो वी कैन राइट दैट एक्स इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 252 प्लस एक्स, पावर 4 कर देते हैं दोनों साइड में। सो एक्स टू द पावर 4 will be equal to 252 plus x, and hence the result will be x to the power 4 minus x is equal to 252। ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब ऐसे केसेस में अगर हमें कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो क्या हम x की वैल्यूज पुट नहीं कर सकते? जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन आए कि x टू द पावर 4 माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का एक्सप्रेशन आए और वैल्यूज हमारी इंटीजर में हो, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया है दैट इज एन इंटीजर, तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में वी शुड अप्लाई सम वैल्यूज, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करते हैं, डेफिनेटली अगर हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे सो 3 टू पावर 4 इज 81, और डेफिनेटली हमारा जो राइट हैंड साइड है दैट इज 252। तो x टू इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 इज 16 स्क्वायर 256, सो दिस विल बी 256 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 252। सो दिस इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, यानी कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 4। क्लियर है? दिस विल बी आवर आंसर। कोई दिक्कत? ओके, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू x इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 504 प्लस क्यूब रूट ऑफ 504 प्लस क्यूब रूट ऑफ 504 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो व्हाट विल बी द आंसर? कमेंट में मेंशन करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, एंड सिमिलरली कह सकते हैं y इज इक्वल टू तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। ये आंसर कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड आई बिलीव सेशन में जो भी हमने बातें डिस्कस की, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए समझ में आएंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। और अगर सेशन अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, और अगर तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। इन द नेक्स्ट सेशन वी बी डूइंग सम मोर इनफाइनाइट सर्ट्स, जहाँ पे कि हमारे जो रेडिकल्स होंगे मल्टीप्लाइड होंगे, मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।